lesson 1, the portrait of a lady from standard 11. First, we see about writer. So, the name of the writer is Khuswant Singh. So, let's see some information about the author. He was born on 2nd February 1915. Then he was dead on 20th March 2014. He was Indian novelist raised in Delhi. Then his famous work you can see here, Train to Pakistan, Delhi, a novel which is written in 1990. The another work is The Company of Women, 1999. Truth, Love and Little Malice, 2002. Then another work is The Good, the Bad and the Ridiculous, 2003. Then what we can see in this lesson, that one point is here, in this lesson he has drawn the pen portrait of his grandmother. So he is written about his grandmother, his childhood also gone with his grandmother, plays, and after what happened when he went to foreign with his parents, at that time what happened with him and what happened to his grandmother, that all the story you can learn in this lesson. Okay, now we see first paragraph of the first lesson, line by line. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Wrinkled means here having small lines or folds that appear on skin as one grows older. When one's grown older, you can see on his or her face that grows some lines appears, that we can say wrinkled here. That poet describes about his grandmother like everybody's grandmother, old woman and wrinkled on her face for the 20 years that I had known her. Wrinkled थे लेकिन कब से थे? For 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. आसपास के जो पीपल थे वो क्या कहते थे कि उनका एक हस्बैंड था, वो बहुत ही यंग थी, हैड अ हस्बैंड, बहुत ही यंग थी, प्रिटी लेडी थी, जब वो यंग थी तब वो प्रिटी दिखती थी, उनका एक हस्बैंड भी था, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. तो ये क्या है, राइटर के लिए तो बहुत ही हार्ड है ये बिलीव करना, क्योंकि जब से उन्होंने देखा है तब से उन्होंने तो उनको ऐसे रिंकल फेसिस और ओल्ड वुमन के फॉर्म में ही देखा है. माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हैंग अबोव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम. उनका जो पोर्ट्रेट था वो भी वहाँ पे लगा हुआ था, मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में जो शेल्फ होती है, शेल्फ था, वहाँ पे उनका जो मास्टरपीस लगा हुआ था उसका पोर्ट्रेट का. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड दैट हिज ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट थे वो वहाँ पे लगा हुआ था, वो डेड हो गए हैं, दैट्स वाई. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. तो फोटो में क्या दिख रहा था, उन्होंने बिग टर्बन पहनी थी, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहना था. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक एटलीस्ट 100 years old. वो तो बहुत ही ओल्ड दिखाई दे रहे थे. He did not look the sort of person who would have a wife or a children. वो ऐसे तो नहीं लग रहे थे कि उनकी एक वाइफ भी होगी या उनका चिल्ड्रन भी होगा, यानी कि वो बहुत ही ओल्ड दिख रहे थे. उनको देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ओल्ड है, उनकी इतनी यंग और प्रिटी वाइफ भी होगी, ऐसा कोई बिलीव नहीं करेगा. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. How he looked? He looked
as lots of grandchildren. He had lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty. किसके अकॉर्डिंग ये राइटर ने कहा है कि उनकी ग्रैंडमदर तो बहुत ही प्रिटी यंग वुमन थी, और उसके अकॉर्डिंग देखो तो उनके ग्रैंडफादर तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन उनके अभी है. The thought was revolting. That this is the expression which is given here, that we can say idioms was revolting. तो ये thought ही कैसी है, like a unpleasant thinking. Almost revolting means unpleasant thinking. He often told us of the games she used to play as a child. Now look, she talks with the writer. She used to talk games, how she played as a child. That seemed quite absurd. Absurd means here useless or like a fiction, or maybe we can say that useless, most of this word. That seems like quite absurd and undignified. Cannot believe on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Fables means ये fairy tales, fiction story. जैसे कि उनको लग रहा था कि ये fiction story है. Prophets means future teller, कि जो future teller कहते हैं जैसे कि story which is hard to believe, कि हम believe भी नहीं कर सकते. Whatever she used to tell us. Next paragraph. She had always been short and fat and slightly bent. तो भी डिस्क्राइब किया है यहाँ पे वो कैसे दिखती है, जैसे कि बहुत ही शॉर्ट है, फैट भी है और स्लाइटली बेंट है, बिकॉज ऑफ शी वॉज ओल्ड लेडी. सो शी बिकम सम 20 years ओल्ड. वो जब से 20 years के तब से वो लेडी को देख रहे थे, यानी कि उनकी ग्रैंड मदर की एज बहुत ही ज्यादा होगी, कि वो बहुत ही ओल्डर लेडी होगी. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, सभी ओल्डर लेडी में ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो बैंड हो जाए, लेकिन समटाइम पॉसिबल होता है कि स्लाइटली बैंड हो सकता है बिकॉज ऑफ ओल्ड, उनकी जो ज्यादा एज होती है इसके हिसाब से. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके फेस पे जो crisscross wrinkles थे, यानी कि इधर क्रॉस के जैसे सभी फेस पे wrinkles हो जाना, जैसे कि स्किन पे सभी लाइन्स है जो एक दूसरे से क्रॉस करती है. Running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older. Had stayed at the same age for 20 years. फिर जब से देखा है तो वो तभी से इतनी ओल्ड, टेरिबली ओल्ड होती जा रही है. Had grown older and older वो होती जा रही है. जैसे एज पास होती है वैसे तो वो ओल्ड होने वाले होते. सभी के साथ ऐसा होता है, जो वो उनकी ग्रैंड मदर के साथ भी ऐसा ही होता है. जैसे उसकी एज ग्रोन होती है वो ओल्डर होती जा रही है. और वो for 20 years से वो कैसी लग रही है, stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty. जैसे लग रहा है कि वो कभी pretty थे ही नहीं. But she was always beautiful by heart. हमें ये समझना है कि वो पहले से भी वो beautiful है, but she was लग रही, not pretty नहीं लग रहा है, लेकिन वो beautiful है. She hopped about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the bits of her rosary. Hop means यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो बहुत ही डिफिकल्टी के साथ चल रही है हाउस में, और उनके जो हाउस है इन स्पॉटलेस वाइट, बहुत ही क्लीन है, जो भी है वो बहुत ही वाइट स्पॉटलेस वाइट, बहुत ही क्लीन, विदाउट एनी, कोई भी दाग नहीं है, विदाउट एनी डर्ट on the ground, very clean and neat we can say. With one hand, तो वो एक हाथ अपने वेट्स पे रखती है, because she need to be balanced, उनको बैलेंस रखना है, तो वो अपना बैलेंस रखती है
थोड़ी बेंड डाउन होती है, स्टूप मीन्स बेंड डाउन होना। तो बेंड डाउन होके अपने वेस्ट पे थोड़ा बैलेंस लगा के वो क्या करती है, वो अपने हाउस को क्लीन करती है। और उनका जो दूसरा हाथ है वो क्या किसमें बिजी है, द अदर टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि बिट्स ऑफ हर रोजरी मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो रोजरी होती है उनके जो बिट्स होते हैं उसे जो राउंड पीस ऑफ ग्लास वुड से भी बने होते हैं, कोई कोई तो कभी कभी तो स्टोन से बने होते हैं राउंड पीसेस, जो रोजरी में प्रेयर करने के लिए यूज करते हैं। क्रिश्चियन में रोजरी का यूज होता है प्रेयर के लिए, तो वो रोजरी वहां पे उनके हाथ में है तो वो यूज कर रही है और जो उनके जो बिट्स है वो काउंट करके जा रही है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly move in inaudible prayer. Her silver locks were scattered untidily. वो कैसे लग रहा है जैसे कि scatter untidily over her pale face, wrinkled, dim food. Then lips जो constantly उनकी lips है constantly क्या होती है, move होती है prayer के लिए। Then what we will see here? Then we can see that she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain. इसके वो डिस्क्रिप्शन किया है, ये सारा डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे दिख रही है, लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। जो प्योर हार्ट होता है उन्हें भी हम क्या कहेंगे, दैट स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक्सपांस प्योर, दैट प्योर वाइट सेरेनिटी, काम, फेस पे इतना काम है, बहुत ही शांत लग रहा है, जैसे कि माउंटेन है जो कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, बहुत ही क्लीन होता है। जैसे कि बहुत ही विंटर में हम माउंटेन्स को एरिया लैंडस्केप देखेंगे तो वहां पे बहुत ही काम होगा, पूरा का पूरा एक एरिया बहुत ही प्लीजेंट एंड क्वाइट होगा। तो यहाँ पे क्या सिंबलाइज किया है कि वो कैसे दिख रही है, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, बहुत ही काम, और उसके फेस पे देख के लगता है कि बहुत ही सेटिस्फैक्शन है। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, बहुत ही पीस और कंटेंटमेंट लग रहा है उसको देख के। नाउ थर्ड पैराग्राफ, माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. My parent left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. बहुत ही वो अच्छे दोस्त है, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के गए थे सिटी में, तभी से वो साथ में रह रहे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that would listen and get to know it by heart. वो अपने मोनोटोनस यानी कि बहुत ही रूटीन लाइफ होती है जिसकी विदाउट एनी चेंजिंग, लाइक हम बोरिंग भी कह सकते हैं जैसे कि, बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनकी जो मोनोटोनस लाइफ है, जो स्टेबल लाइफ है, वो ऐसे की ऐसी है। जैसे सुबह में उठना, उसके जो ग्रैंड चाइल्ड है उसको उठाना, वेल ड्रेस करना, बात कराना, और उसके साथ साथ वो कुछ सॉन्ग भी गा रही है जैसे कि राइटर सुन सके बाय हार्ट. दैट्स व्हाई I listen because I means here the author listened because he loved her voice but never bothered to learn it. वो उनको अच्छा लगता था, वो सुनते थे, लेकिन उन्होंने कभी वो इस बारे में नहीं सोचा कि मैं इसके बारे में सोचूं, उसका वॉइस अच्छा है, लवेबल वॉइस है, इसलिए वो सुनते थे, लेकिन उसमें से कुछ लर्न करना उन्होंने कभी नहीं सोचा. Then she would fetch my wooden slate with which she had already washed, plastered with yellow chalk, tiny earthen ink pot and a red pen. ये सारी बातें बहुत ही पुरानी है क्योंकि वुडन स्लेट पहले यूज होता था, पहले वो घर पे स्टूडेंट थे वो लेके आते थे, अपने कैरी करके आना होता था सारी बुक्स, और जो स्लेट होती जिसमें लिखना होता था, तो उन्होंने सब कुछ वैसे लिख दिया. और जो यहाँ पे टाइनी अर्दन इंक पॉट यानी कि इंक पॉट यूज होता था लिखने के लिए, रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल,
हैंड इट टू मी, सब कुछ एक साथ में कर दिया और उनको दे दिया. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाटी विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. क्या नाश्ते में क्या होगा, उसके ब्रेकफास्ट में थोड़ी थिक स्टेल यानी कि पहले बनाई होगी, थोड़ी पहले से, फ्रेश नहीं है, स्टेल चपाटी उन्होंने खाई, थोड़ा बटर लगाया है, शुगर स्प्रेड किए और खा के स्कूल पे चले गए. She carried several stale chapatis with her for the village dog. थोड़ी चपाटी, जो चपाटीज है बची हुई स्टेल चपाटीज, वो अपने साथ भी ले लेती थी जब वो स्कूल पे छोड़ने जाती थी उनको, राइटर को, ऑथर को हमारे यहाँ पे, तो वो साथ में ले लेती थी थोड़े, जैसे कि विलेज डॉग्स को खिलाने के लिए थोड़ी चपाटी वो अपने साथ भी ले लेती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. स्कूल के बहुत ही पास में क्या था, टेम्पल था, तो वो साथ में ले लेती थी. क्या है, उनके साथ चली आती थी. टेम्पल भी वहाँ पे पास में था, तो जो वहाँ पे प्रीस्ट होते थे वो उनको सिखाते थे अल्फाबेट, मॉर्निंग का जो प्रेयर होता है. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in the chorus. तो वह सारे सभी चिल्ड्रन एक साथ में बैठते थे रोज में, अदर ऑफ द वरंडा, सिंगिंग देन द अल्फाबेट और द प्रेयर इन द कॉरस. सभी लोग कॉरस में सिंगिंग कर रहे थे, एक साथ में वहाँ पे बैठे हुए थे. उनकी ग्रैंड मदर कहाँ पे थी, ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. तो वो थोड़ी स्क्रिप्चर्स में वहाँ पे होली बुक, तो ये उनकी ग्रैंड मदर थी, वो साइड में बैठी हुई थी, वो होली बुक्स है वो रीड कर रही थी. When we had both finished, we could walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो वो यहाँ पे क्या कर रही थी, जो डॉग सामने उनके रास्ते में जो डॉग मिलते थे, फिनिश होने के बाद वो घर पे चले आते होंगे, वो तो हमें यहाँ पे लिखा ही है. तो वो साथ में जो चपाटीज ली थी वो विलेज डॉग्स को खिलाने के लिए, तो वो वहाँ पे जो उनके साथ में चले आते थे, फाइटिंग करते हुए जो साथ में चले आते थे डॉग्स, उनको थ्रो कर देते, वहाँ पे रख देते थे कि वो लोग भी खा सके. नेक्स्ट पैराग्राफ. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. थोड़ा चेंज आ गया है, इम्पोर्टेंट चेंज लाइफ में, उनकी फ्रेंडशिप के बीच में, उनके बीच में थोड़ा चेंज आ गया है. उनके पेरेंट्स है वो सिटी में सेटल हो चुके हैं, तो उन्होंने उनको बुला लिया वहां पे. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the country yard of our city house. तो यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या चेंज होता है यहाँ पे. उनका जो रूम है वो भी नहीं रहा, अभी साथ में रहते थे. नो लॉन्गर केम टू स्कूल, वो साथ में स्कूल जाना बंद हो गया है. देन इंग्लिश स्कूल में, अभी पहले कंट्री साइड में थे, अभी तो इंग्लिश स्कूल में आ गए, मोटर बस में जाते हैं. देन वहां पे साथ में स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं है. यानी कि उनकी ग्रैंड मदर है जो उनको फीड कराती थी. देन सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, जो कंट्री यार्ड में उसके जो स्पैरोज है उनको फीड कराने के लिए, जो She took feeding sparrows in country yard of our city house. तो वो क्या करती है, स्पैरोस को, जैसे कि सिटी हाउस में जो स्पैरोस है उनको वो फीड कराती थी. In next paragraph, as the years rolled by, we saw less of each other. जैसे कि years pass होने लगे, years passing, they less saw each other. यानी कि they couldn't see each other well. For some time she continued to wake me up and get me ready for school
When I came back, she could ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. वो जिस यहाँ पे जो ऑथर है वो वहाँ पे स्कूल से वापस आते थे तो वो उनको कुछ पूछती रहती थी स्कूल के बारे में, क्या लर्न किया और क्या क्या, तो वो क्या बताते थे, कहते थे इंग्लिश शब्द के बारे में, वर्ड्स के बारे में, कुछ लिटिल थिंग्स थी जो वेस्टर्न साइंस और उनके अकॉर्डिंग जो लर्न किया था वो सभी वो बताते थे। और दूसरा साइंस के बारे में द लॉ ऑफ ग्रेविटी, देन Archimedes, that is an ancient Greek, we can say ancient Greek मैथमेटिशियन है, फिजिशियन भी है और इंजीनियर भी उनको कह सकते हैं। यानी आर्किमिडीज के लॉज और वो सब तो आपने लर्न किए होंगे। प्रिंसिपल्स, उनके जो सिद्धांतिक थे वो सभी, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, तो वो सारी बातें जो रिलेटेड थी साइंस के, मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स, वो सभी लर्न करते थे और सभी को बारे में वो घर पे आके बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये सारी बातें सुन के वो बहुत ही अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तो अभी ये जानने के बाद वो सैड क्यों हो जाती थी, बिकॉज शी डिस्ट्रेस्ड दैट दे वॉज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, हॉली थिंग्स के बारे में तो सिखा ही नहीं रहे थे। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her music had lute एसोसिएशन, उनका जो वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के लर्न कराती थी। उन्होंने एक दिन वहाँ पे घर पे जाके क्या कहा कि वो म्यूजिक लेसन के बारे में लर्न करके आया है, तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। उनका जो म्यूजिक है बहुत ही कैसा है, कॉमन टिपिकल टाइप का म्यूजिक है। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. तो वो जब यह भी जो म्यूजिक पढ़ाते थे उनको लग रहा था कि ये म्यूजिक तो कैसा है, बहुत ही मोनोपोली वाला म्यूजिक है, अच्छा नहीं, म्यूजिक जैसे होना चाहिए गॉड का वो सभी का वैसे नहीं है। वो उसे क्या लग रहा था, शी फेल्ट दैट म्यूजिक वाज नॉट फॉर जेंटल फॉक्स, तो ये म्यूजिक है वो बैगर्स और हार्लॉट, यानी कि यहाँ पे भी फीमेल प्रोस्टिट्यूट वी कैन से दैट, तो ये प्रोस्टिट्यूट और बैगर्स के लिए होता है, जेंटल फॉक के लिए नहीं है, उसको ये लग रहा था। She said nothing but her silence meant disapproval. उसके बाद उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके फेस पे जो साइलेंस था वो ये डायरेक्ट दिखा रहा था कि वो बहुत ही डिसअप्रूवल है ये इसके बारे में जान के। She rarely talked to me after that. उसके बाद तो उन्होंने रेयरली बात की उनके साथ, कि कुछ शेयरिंग भी नहीं किया, कुछ पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, तो दोनों के बीच में बहुत ही रेयरली टॉक होती थी।